اور قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، کلام الہی میں اللہ رب العزت آیت نازل کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور نور، نور سے مراد یہاں پر مفسرین قرآن نے لکھا ہے، جو تفسیر لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے بزرگان دین، اکابرین اولیاء اللہ بھی اور موجودہ بھی، سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نور سے مراد یہاں جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نور ہے، اور سرکار بھی فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے نور محمدی کو خلق کیا، اور نور محمدی نے جو اللہ کی عبادت کری، جو اس سے نوری پسینہ بہا، اس سے پوری کائنات وجود میں آئی، کیونکہ 5 منٹ کا وقت ہے، بہت مختصر میں بولنا ہے۔ تو یہ جو کائنات میں جو آپ کو سب چیز نظر آ رہی ہے، یہ صدقہ ہے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سخا بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر مطلب سخی ہے، سخاوت والے ہیں، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا ہے آسمان سے مصطفیٰ بن کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کا نور اترا ہے آسمان سے مصطفیٰ بن کر۔ ایک بار درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے جلووں کے قرباں، تیرے جلووں کے قرباں، دید و دل کر دیے روشن، تیرے جلووں کے قرباں، میرے آقا کے جلووں سے، ان کے جلووں پہ میرے قربان، تیرے جلووں کے قرباں، دید و دل کر دیے روشن، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کی آمد کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، ربیع الثانی کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب ربیع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہار کے۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ بہار۔ ہمارے گاؤں قصبے کے لوگ جانتے ہیں کہ بھائی صاحب ربیع کی فصل ہے، بہار۔ تو ربیع الاول یعنی جب میرے آقا تشریف لائے تو ربیع الاول یعنی بہار اول، پہلی بہار آئی، اور دوسری میں یہ ثانی مطلب یہ مہینہ غوث پاک سے منسوب ہے، ربیع الثانی، تو سرکار غوث پاک کا مہینہ بہار ثانی کہلایا۔ سبحان اللہ، سبحان مطلب نانا کا مہینہ بہار اول اور نواسے کا مہینہ بہار ثانی، مطلب وہ مہینہ بھی بہار کا اور یہ مہینہ بھی بہار کا۔ سبحان اللہ۔ مل کے کہہ دیجئے یا غوث المدد۔ یا رسول تو سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی نظر ہمارے یہاں ہمارے برادر اکبر بڑے بھائی جناب قبلہ نثار میاں صاحب نے رکھی، کس کی نظر؟ کون ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عالم عبادت و زہد و تقویٰ کا یہ تھا کہ جن کا زہد و تقویٰ نبیوں کی طرح کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے نبیوں نے عبادت کری، اس طرح سے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ علیہ نے کری۔ آپ عزیزو جانیے کہ جب آپ مرید ہونے کے لیے چلے ہیں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آنا ساگر میں عبادت فرما رہے تھے، ایک سوکھا پیڑ تھا، شدت کی دھوپ تھی، جو لوگ اجمیر شریف جانتے ہیں گرمی کے دنوں میں دیکھیں گے وہاں پہاڑ درو دیوار تپتے ہیں، ایسی تپتی دھوپ میں آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ابھی دیکھیں مرید نہیں ہوئے، لیکن کس کمال پہ پہنچے ہوئے کہ دور سے دیکھا کہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ، ایک اللہ کا ولی کامل شہنشاہ ہندوستان، اتنی محبت، جبکہ مرضی غریب نواز کی ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تپتی دھوپ میں انہیں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، تجلیات الہی سے معمور ہے وہ جگہ، لیکن بظاہر بابا فرید صاحب نے دیکھا، محبت نے کہا ہے پیڑ تو کیسے سوکھا ہے، ہرا بھرا ہو جا۔ پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، شہنشاہ ہندوستان کو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، آپ نے آنکھ کھولا دیکھا کہ پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، کہا یہ کیا، جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ پیڑ پھر سوکھ گیا، پھر تھوڑی دور بابا فرید صاحب چلے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پھر ویسے ہی سوکھ گیا، کہا پھر ہرا بھرا ہو جا، پھر وہ ہرا بھرا ہو گیا، پھر غریب نواز سرکار نے آنکھیں کھولی اور دیکھا، کہا پھر ویسے ہی ہو جا۔ یہ کرتے کرتے قریب پہنچ گئے، قریب پہنچ کے سلام عرض کیا، قدم بوس ہوئے، کہا کس لیے آئے ہو؟
कहा हुजूर मुरीद होने आए हैं, तो सादी जबान में समझाने के लिए कहा आपने कि मुरीद होने आए हो कि लड़ने आए हो? कहा हुजूर हाथ जोड़ा, कहा नहीं हुजूर मेरी कहा मजाल कि आपकी बारगाह में। कहा हुजूर मैं मोहब्बत में आपको पेड़ सूखा देख के कहा हाँ फरीदुद्दीन तुम्हारी मोहब्बत चाह रही थी कि मैं, लेकिन मुझे अल्लाह की इबादत इस तपती हुई धूप में ही अच्छी लग रही है, मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तपती हुई धूप को अगर मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया तो कल रोजे महशर की धूप का क्या आलम होगा, रोजे महशर की गर्मी का क्या आलम होगा। तो लिहाजा हमें नमाज और रोजे और तिलावत कुरान की, आज हम गुमराहियत की तरफ बढ़ रहे हैं। आज देखिए फिलिस्तीन में क्या हो रहा, बम बरस रहे हैं, जीना मोहाल है, वो ईमान वाले हैं, उनके यहाँ बम बरसता, लोग मर जाते हैं, लेकिन बच्चा तिलावत करता है, सब्र करता है, शुक्र अदा करता है। तो तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, मजलूम और मजबूर एक तरफ, लेकिन अल्लाह का दामन उन्होंने पकड़ रखा है, नबियों का दामन पकड़ रखा है। सहीउल अकीदा है, नबी पे सलातो सलाम भेजते हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले नबियों की मज़ारात की हिफाजत करते हैं जो वहाँ पर है। वहाँ पर एराज का इनकाद होता है, महफिल मिलाद होती है। इस गुर्बत में जहाँ बम बरस रहे उन्होंने नबी की मिलाद बनाया, लेकिन हाय रे हमारे घरों में अफसोस कि मिलाद का चलन खत्म हो गया। अब किसी के कहने जाओ तो पूछते हैं क्या बना है, लड्डू है कि बर्फी है कि बिरयानी है। मतलब तुम्हें नबी से इश्क नहीं है, नबी से जिक्र से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पेट से मतलब रह गया है। अरे मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारा तो यह आलम होना चाहिए कि जहाँ मैंने नबी का जिक्र, आज निसार भाई ने तमाम लोगों को दावत दी, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा। अरे मियाँ ना समझो, ये देखो कि नजर किसकी है, नियाज किसकी है, महफिल किसकी है। जो लोग आ गए बाइसे बरकत है, उन पर नूर का नुज़ूल हो रहा है, क्योंकि ये महफिलें सजाना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। मांझे की महफिलें, शादी का दौर शुरू हो गया, नाच गाना घर घर होगा, वहाँ लोग बड़े खुशी खुशी जाएंगे, शरीक होंगे, छोटे बड़े की हया ख़त्म हो रही है। ये सारी चीज़ बेहयाई बर्बादी का वक्त चीज़ें हैं। लेकिन आज कव्वाली महफिल समा जहाँ जिक्र हबीब होगा वहाँ बैठना नहीं पसंद करेंगे नबी की महफिल में। तो मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि बम गोलियों के साए में जहाँ जान का खतरा है कि 2 मिनट में मुझे नहीं पता कि यहाँ गिरेगा, हम मर जाएंगे, वो नबी की मिलाद मना रहे। तुमको तो ऐसा नहीं, तुम तो हिंदुस्तान में हो, यहाँ की पुलिस तुम्हारी हिफाजत करती है, चाहे इतना बुरा दौर चल रहा है, लेकिन आज हमारे बीच में हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं तुम्हारे साथ, कांधे से कांधा मिला के। दुनिया की सारी कौमों में आप देखिए, मुसलमानों को अगर साथ देने वाली कौम है तो वो पूरी दुनिया में आपको हिंदू भाई मिलेंगे, क्योंकि इनके दिल में मोहब्बत है वलियों की, इनके दिल में मोहब्बत है गुरुजनों की। ये कहते हैं गुरु गोविंद है दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पीर फकीर की मोहब्बत करते हैं, ये फर्क नहीं देखते कि ये गुरु हिंदू है कि मुसलमान है। जिसके अंदर इन्होंने ईश्वरी तजल्ली देखी, खुदाई नूर देखा, उसके आगे झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि ये गुरु हमें गोविंद तक मिला देगा। तो हाथ मिलके हिंदू मुसलमान मिलके हाथ मिला के इस दुनिया में शांति और अमन का पैगाम पूरी दुनिया में भेजिए। तो कहने मकसद अगर ये दावत देते हैं इस चीज़ की तो दौड़े दौड़े आइए, क्योंकि ये दावत किसी और की नहीं है, किसी मांझे की नहीं है, किसी शादी ब्याह की नहीं है, किसी खतने की नहीं है, किसी उसकी नहीं है। ये दावत किसकी है? दीन की दावत है, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा वली की दावत है। तो आप फरमाते हैं फरीदुद्दीन अगर तुम्हें मुरीद होना है तो जाओ, मेरा कुतुब दिल्ली में है, तुम्हारा हक वहाँ है, वहाँ जाके मुरीद हो जाओ। तो ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर दिल्ली आते हैं और ख्वाजा कुतुब साहब से मुरीद हो जाते हैं। और फिर उन्हीं के 2 नूर, एक भांजे मुंबई सिर्रे नबूवत हम विलायत हैदरी, आप ताबे चिश्तिया साबिर अलाउद्दीन कलियरी, और शहंशाह दिल्ली, बादशाह दिल्ली, शहंशाह हश्र बहिश हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जिनकी 17 तारीख सालाना आ रही है। वो तारीख जो है महबूब इलाही, वो अल्लाह के वली निज़ामिया सिलसिला और साबरिया सिलसिले ने पूरी दुनिया में धूम मचा दिया। तो इन वलियों का साया हम सब पे है। सैयद सरदार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मौलाए कायनात के जनाब बेटे जनाब मोहम्मद हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिन्होंने बाद इंतकाम, बाद करबला इंतकाम लिया यजीदियों से और कसम खाई थी कि जब तक मेरा घोड़ा जो है खून में न डूब जाएगा मैं तलवार नहीं रोकूंगा। वो मोहम्मद हनफिया मौला अली के बेटे, जिनका घोड़ा जो है पानी अल्लाह को बरसाना पड़ा, इतना खून कहा वो तैरा, तब उन्होंने तलवार रोकी। उन्हीं के बेटे सैयद सरदार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जो है इस्लाम का परचम, मोहब्बत इंसानियत का परचम बोला। हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इस सरजमी पे तशरीफ, इमाम जाफर सादिक जिनके कूदने की नजर कराते हैं, उनकी औलादों में से।
दमदार बेड़ा पार। बेड़ा पार। कहने मतलब ये औलिया अल्लाह का दामन अगर आपने थाम लिया तो फनाफी शेख में मुज़मिरा असरार बका बिल्लाह खुदा तौफीक देता है जिन्हें मुर्शिद में मरते हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान अजीजों, कहने का मकसद ये है कि सरकार सूफी नजर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हुसैनगंज को नूरानियत से आबाद किया। बेशक। उन्होंने ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा नजर मोहम्मद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो आके, मुझसे करीब हो, लेकिन मुझसे मिलने का तरीका जो है वो इस तरह से नहीं है। तुम इबादत करते हो, रियाजत करते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुरीद होना पड़ेगा, तुम्हें किसी का मुरीद होना पड़ेगा, मुरीदी और पीरी के जरिए से मुझसे आके मिलो। तो आपने बशारत दी कि मेरी एक औलाद हजरत सूफी सैयद गुलाम मोहम्मद चिश्ती निज़ामी फ़ख्र सुलेमानी रहमानी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल मशाइख तशरीफ हो मेरी औलादों में से, उनका दामन पकड़ लो। जब आप पहुंचे का क्या नाम है, कहा नजर मोहम्मद का मेरा नाम गुलाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद का मेरा नाम गुलाम मोहम्मद। फिर कहा बताओ मेरा नाम क्या, कहा नजर मोहम्मद। फिर कहा मेरा नाम गुलाम मोहम्मद, तुम्हारा मेरा नाम मिल गया, मैं तुम्ही को ढूंढता आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान। तो उनके दादा बेट ने हाथ में हाथ लिया, फिर दस्तरखान लगा खाने के लिए। कहा हुजूर हम लोग झूठा नहीं खाते हैं। कहा बेटा मैं सैयद हूँ, कहा मैं भी सैयद शेख हूँ, हम लोग झूठा नहीं खाते हैं। तो कहा कि मैं औलाद हैदर हूँ, कहा मैं बाबा फरीदुद्दीन की औलाद हूँ। तकरार होने लगी। कहा अच्छा साथ में खा लोगे, कहा हाँ खा लेंगे। तो एक ही निवाले एक ही प्याले में सूफी साहब ने सालन को मिला दिया, और जैसे ही नजर मियाँ की आँख चूकी, आपने एक बोटी टुकड़ा अपने लब से लगा के रख दिया। बस उस बोटी को, उस टुकड़े को खाना था। किबला नजर बाबा को उस रोटी के टुकड़े को खाना था कि दिल की दुनिया ही बदल गई। पुलिस की नौकरी यही हुसैनगंज में थे, आबू नगर चौकी फतेहपुर से नौकरी को छोड़ दिया। 92 में करोड़ों रुपए की जायदाद, आज भी आप लोग जाके देख सकते हैं, बड़ा मकान है। पीर ने कहा जायदाद छोड़ दो, वो जायदाद छोड़ दिया, वो इमलाक छोड़ दिया, कुंभा छोड़ दिया, कहा सब कुछ पीर के लिए तर्क कर दो, सब कुछ तर्क कर दिया, सिर्फ वो बचे। आज वो शान है, वो अजमत है उनकी कि कानपुर में जलवागर है, करोड़ों रुपए की लागत का रोजा बना हुआ है। पूरी दुनिया में जो है, पूरे जहाँ जहाँ में उनका सिलसिला चल रहा है, नाम चल रहा है। हम तो चौक जाते जाने कहाँ कहाँ अनजान जगह गए, बातचीत करा। अभी कल ही एक शादी में गए, बात होने लगी, पता चला हजरत सूफी कोई अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह थे नजर बाबर, उनके मुरीदो खलीफा सैयद अली रजा अबू लिलाई से मिल गए। मालूम दिया बाबू तो कहने अरे हजरत नजर बोसा लेने लगे। अरे सरकार उनके क्या कहने, मेरे पीर उनकी सोबत में बैठा करते थे। मतलब जहाँ जाइए जिधर जाइए वलियों का मामला मिलता है। तो ये दामन बड़ा मजबूत दामन है किबला नजर मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो इस दामन से वाबस्ता हो गया उस जमाने में, और जो है फैज़ व करम का है। फैज़ लेने का तरीका चाहिए, अदब से जाइए, मोहब्बत से जाइए, फित्र लेके जाइए, खुशबू पेश कीजिए, अपनी बात को रखिए, अल्लाह से रखिए, उनके वसीले से अल्लाह तुम्हें पूरा करेगा। बुग़्ज़ व हसद और तनकीद लेके मत जाइए। वली की बारगाह में जाइए तो कहा गया चाहे खूबसूरत सी 2 पत्ती लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे खाली हाथ आओगे नहीं। तो कुछ ना कुछ तोहफे तहफ़ बुजुर्गों की बारगाह में जरूर लेके जाओ, क्योंकि सहाबा की सुन्नत रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचते थे। तो यहाँ तक बता दिया गया कि कुछ ना हो तो 2 खूबसूरत पत्ती ही ले जाओ वलियों की बारगाह में। तो अजीजों, दामन को पकड़िए, मजबूती से पकड़िए। अगर वलियों का दामन नहीं होगा, गौस पाक ने फरमाया जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। जिसका पीर, और शैतान का जब कोई मुरीद हो जाएगा तो फिर हाल क्या होगा। तो लिहाजा वक्त से पहले मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज देखिए नौजवानों की मौत आ रही है, फला इंतकाल कर गए, फला कर गए, फला कर गए, फला कर गए। तो लिहाजा अपने आप को शरीयत और तरीक़त दोनों पे गामजन कर लो। किसी भी मजबूत दामन से सिलसिले से वाबस्ता हो जाओ ताकि तुम्हारी निजात, क्योंकि सरकार गौस पाक ने फरमाया था मोइनुद्दीन क़यामत तक तेरे सिलसिले में जो चिश्ती होगा वो बहिश्ती होगा, वो जन्नती को बख्श दिया गया। ये सरकार गौस आज़म ने फरमाया था सरकार गरीब नवाज के लिए, और उनके पीर ने भी फरमाया था कि है मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएगा वो बख्श दिया गया। सरकार गौस आज़म ने फरमाया जो मेरा मुरीद चाहने वाला है, अगर मैं मशरिक में हूँ, पूरब में हूँ, पश्चिम में, अगर आप मदद को पुकारेगा तो मैं पश्चिम में उसकी मदद करने आऊँगा। तो ये वली मददगार है, अल्लाह की तरफ से मददगार बनाए गए। करने वाली ज़ात अल्लाह की, लेकिन इनको वसीला बनाया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की